Hello, learners. Myself, Dr. Venkatramana, and my colleague, Mr. Pankaj Upadhyay, from the Discipline of Anthropology, School of Social Sciences, IGNOU. Today, we are discussing on a topic, anthropology and its branches. Now, let me begin with an introduction for anthropology. What is anthropology? Anthropology is the scientific study of human beings in a holistic approach. Anthropology could be defined as the human, cultural and biological evolution and variation of human beings. Then, this anthropology has broadly been divided into 4 branches. They are physical anthropology, which is also called as biological anthropology, social cultural anthropology, archaeological anthropology, and the final branch is, linguistic anthropology. Now, let us discuss each and every branch in detail. First, let me begin with the branch physical anthropology. What is physical anthropology? Physical anthropology deals with the origin and evolution of human beings in a biological perspective. There are several subfields within physical anthropology. First, we start with primatology. What is primatology? Primatology is a field which talks about non-human primates, a group of animals like apes, humans, monkeys, and prosimians belong to one group. And if we understand the anatomical structure of apes, monkeys, and humans, we will be able to understand the relationship of humans with monkeys and apes from where we evolved. And also, we can sequence the events of evolution relationship of apes and monkeys to the human beings. That is primatology. Then next branch is paleoanthropology. In paleoanthropology, physical anthropologists study, the fossil evidences of human evolution. Primarily, there are 4 fossil evidences in human evolution. They are Australopithecus stage, Pithecanthropus stage, Neanderthal stage, and modern man. That is, our modern man is nothing but Homo sapiens sapiens, ourselves. And in these 4 stages, the cranial capacity has been increased from lower to higher. The Australopithecus stage cranial capacity was 520, but our cranial capacity is 1350 cc. That is, we are the evolved human beings, that is Homo sapiens sapiens. And then next field within physical anthropology is anthropometry. What is anthropometry? Anthropometry is nothing but a recording of measurements on a living human being or dead human being. Anthropometry could be divided into 2 branches, that is somatometry and osteometry. What is somatometry? Somatometry is the recording of measurements on the living human being or the cadaver. Osteometry deals with the recording of measurements on bones, including the skull. The measurements which we measure on the skull is called craniometry. I'll give you a few examples for somatometry, like taking height of an individual and sitting height of an individual and weight of an individual, chest circumference, waist circumference. And if you want to calculate body mass index, you need 2 measurements, that is weight and height of an individual. But in the case of osteometry, we can measure cranial length, cranial breadth, and length of the tibia, length of the fibula, etc., etc. Somatometric measurements would be used to assess the nutrition status of a community and also to design the equipment, like in defense forces and also in garment industry. This anthropometric measurements would be used. But these somatometric measurements are used in forensic anthropology. I will discuss that branch in a little later. The next branch is human osteology.
Human osteology is nothing but study of bones. And this study of bones will help physical anthropologists to identify criminals in forensic science. The next branch, what we talk about, forensic anthropology. In forensic anthropology, we understand the identification of criminals or personal identification by taking measurements on the bones and also with the help of dermatographics, serology, and anthropometric measurements, we establish identity of the persons. But recently, DNA fingerprinting has also added into forensic anthropology, where the job of forensic anthropology is very easy to identify the criminals. Earlier, forensic anthropology used to depend on osteometric measurements, serology, semen, etc. However, because of the DNA technology, and forensic anthropologists have been involved in DNA technology also. And after that, we have one more branch called human growth and development. This is a very good old branch. However, this is very important. What is human growth and development? This talks about the growth of the individual from infancy to old age. It talks about various stages of human growth and the factors that influence the human growth, like factors like environmental factors, genetic factors are also influencing the growth of the individual. So anthropometrics measurements have been used to understand human growth and development. This is one branch. The next branch, we come across human evolution. Human evolution is the core aspect of physical anthropology. So variation and evolution are the two aspects of physical anthropology. Human are the core aspects. Here people, understand the evolution, like, population genetics is very important in understanding the human evolution. The next branch is, nutritional anthropology. In nutritional anthropology, physical anthropologists, what they do, they go to field, take measurements and assess the nutrition status of a community. Particularly, there are, 4 areas where nutrition assessment can be done. They are through anthropometric measurements, clinical examination, biochemical examination, and vital statistics. Recently, we come across in many populations, obesity is more. Earlier, the undernutrition was more. To understand whether population is suffering from obesity or population is suffering from undernutrition or population is suffering with some other kind of nutritional deficiencies, anthropologists play an important role to assess the nutrition status of a community. The next branch is human genetics. What is human genetics? Human genetics is nothing but study of inheritance of characters or traits from parents to offspring, that is children. Or the inheritance of diseases and disorders is also discussed in human genetics. Before the introduction of human genetics into physical anthropology, it is physical anthropology. But however, after introduction of human genetics into physical anthropology, we started calling as biological anthropology. And this is one area where, very recently physical anthropologists have been used to understand population variation, evolution, and for many other things. The next branch is population genetics. Population genetics, studies about the genetics, genotypes and allele frequencies of human population. The allele frequencies will differ from population to population, and these allele frequencies will influenced by mutation, genetic drift, gene flow, the natural selection. And this population genetics has been used to understand human evolution. The last branch I wanted to talk about is molecular anthropology. This is a very new branch which included under physical anthropology, which talks about DNA analysis. So after analyzing DNA analysis, physical anthropologists is very easy to understand the relationship between past human societies and modern human societies, and also to understand the relations between two populations of the existing societies. So, and this is a very new trend in molecular anthropology. As I already said, DNA fingerprinting is a very new technique that has been helpful in identification of the in forensic cases. And there are several other branches like dental anthropology, physiological anthropology, demography,
and human ecology, etc. are also covered under physical anthropology. Now I request my colleague, Mr. Pankaj Upadhyay, will talk about social cultural anthropology. शुक्रिया प्रोफेसर वेंकट। जैसा कि अभी दर्शकों आपको अभी तक बताया गया कि मानव विज्ञान का जो मुख्य क्षेत्र है वो संस्कृति के विभिन्न उद्विकासी चरणों को समझना और उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को एक साथ जोड़कर देखने की प्रक्रिया रही है। अभी तक ये प्रक्रिया जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी कि 1850 के बाद तक सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के रूप में नहीं स्थापित थी, बल्कि ये सामाजिक मानव विज्ञान की एक शाखा के रूप में थी। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इज इन द एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि संस्कृति और समाज के संबंधों को समझने की एक धारा के रूप में इस्तेमाल की गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जिसकी बात हम कर रहे हैं, दे फोकस इन द प्री-लिटरेट सोसाइटीज एंड दे बिलीव इन द रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट कंडीशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि जो हमारी एंसेंट सभ्यताएं थी यानी पूर्व जो सभ्यताएं थी हमारी, उन सभ्यताओं में हम समाज और संस्कृति को किन अवयवों के साथ देख रहे थे, ये इस धारा को प्रमुखता के साथ समझने के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी जिसमें शुरुआत में कंपैरेटिव स्टडी के रूप में प्रारंभ किया गया, जो कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां थी उनके अध्ययन के लिए जो सामाजिक मानव विज्ञान के मानव वैज्ञानिक थे, उन्होंने संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को एक प्रारूप के रूप में रखा। यानी कि यह प्रारूप एथनोलॉजिस्टों का एक समूह कहलाया और एथनोग्राफी इसकी एक विधा के रूप में शामिल हुई। यानी कि एथनोग्राफी एथनोलॉजी से निकलने वाला एक अध्ययन सत्र था, जिसमें संस्कृति के लगातार तुलनात्मक अध्ययनों को प्राथमिकता मिली थी। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ये एथनोग्राफी को रिप्लेस कर दिया गया कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन अमेरिका और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन ब्रिटेन। यानी कि इस जो हम शब्द की बात करते हैं सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आने वाला एक शब्द बन गया। इस शब्द में समाज और संस्कृति जैसे दो मूलभूत तत्वों की बात आती है। यानी कि जब हम इस धारा की बात करते हैं तो जो बेसिक कंपोनेंट है इस विषय को समझने का वो है सोसाइटी और कल्चर के साथ उसके अंतर संबंध। यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली कंसंट्रेट बिटवीन मैन एंड हिज सोशल सिस्टम रिलेशनशिप टू इज रिफर टू और रिलेशनशिप टू सोसाइटी। कैसे मानव का उसके समाज के सदस्यों के साथ, उस समाज के साथ क्या संबंध रहता है, उस संबंध को समझने के लिए विशेष रूप से यह धारा अपनाई जाती है। इस धारा में मुख्य रूप से जो संरचना है हमारे समाज की और हमारे संस्कृति की, उसके संरचनागत स्वरूप, उसके नियमावलियां, उसके व्यवहार समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सच लाइक फैमिली, किनशिप, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम या इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन जैसी चीजें, जिसके आधार पर हम अपने समाज और संस्कृति की व्याख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। वाइल द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी विशिष्ट रूप से मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर प्रतीक और उनके अर्थों के विवेचन पर टिकी हुई है। यानी कि वो प्रिफर करती है कि किस प्रकार से हम समाज के सदस्य अपनी संस्कृति में अर्थों को लेते हैं और उन अर्थों की मान्यताओं को कैसे ग्रहण करते हैं। ये एक बेसिक तरीके से परिवर्तन समझा जा सकता है जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच में होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा वास्ट एक एरिया है, जिस एरिया के अंदर हम विभिन्न प्रकार की और उपशाखाओं का अध्ययन भी करते हैं। उन उपशाखाओं के बीच में हम सबसे महत्वपूर्ण उपशाखा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में समझते हैं। यानी कि आर्थिक मानव विज्ञान को क्षेत्र, जिसमें हम पीजन सोसाइटी और जो हमारी अर्ली प्री लिटरेट सोसाइटीज रही हैं वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से चलाती हैं। यानी जो हमारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के रूप में परिवर्तित होता है, जिसकी को हम चार विशिष्ट धाराओं की बात करते हैं जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में पाई जाती हैं। वो होती हैं प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, अर्थात उत्पादन, खपत, वितरण और उसका विनिमय। जैसे कोई किसान जब कोई चीज उत्पादित करता है, कोई खाद्यान्न या कोई फूड प्रोसेसिंग के थ्रू निकलने वाला कोई गुड्स, उस गुड को जब हम कंज्यूम करने की बात आती है तो कंज्यूमशन सबसे लास्ट स्टेप में चलता है। यानी जब कोई किसान कोई कृषि का कोई उत्पाद करता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने आप को आगे लाता है।
यानी कि जो फसलें निकलती हैं उन फसलों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरण की प्रणाली में लाते हैं और उससे कुछ मुद्राएं हमें मिलती हैं। उस मुद्राओं का इस्तेमाल हम अपनी खपत के लिए करते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है वो पारस्परिक विनिमय और उसके पुनर्वितरण पर आधारित होती है। ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी उस एक्टिविटीज को डील करती है जिस एक्टिविटीज में नॉन लिटरेट सोसाइटी और पीजेंट सोसाइटी आपस में एक रिपोर्टेडली जो रिस्प्रोसिपिरिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के संबंधों को निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम समाज में रहते हैं उस सदस्यों के होने के नाते हमें कुछ संरचनाओं को विशेष तौर पे देखना पड़ता है, यानी राजनीतिक संस्थाएं। यानी ये राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो हमारे ऊपर नियंत्रण रखती हैं, हमें अपने अब किस तरीके से हमको चलना है, हमको किस प्रकार से लेजिमिनेट करना है, क्योंकि समाज के सदस्य होने के नाते हम सबको एक विधा के रूप में चलना पड़ता है। और ये धारा जो है मानव विज्ञान की, जिसको हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, वो कंसंट्रेट करती है पॉलिटिकल प्रोसेस पे, उनके फंक्शन पे, लेगिमिनेट करती है लॉ, अथॉरिटी, जस्टिस और उनके सिंपल सोसाइटीज के साथ कैसे संबंध रहे। यानी कि संस्कृति के विकास क्रम में राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक प्रकर्तनाएं कैसे धीरे से आगे बढ़ी हैं। इसमें मुख्यतः रूप से जो पावर और लीडरशिप यानी नेतृत्व और शक्ति के बीच का जो आपसी समन्वय है, कैसे राष्ट्र राज्य के निर्माण में और हमारे राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में किस प्रकार से मदद करता है, यह जानना इस शाखा का मूल उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम करते हैं इस मामले में, तो हमारी बात आती है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल गई है, तो ये व्यवहारगत रूप से विशेषताएं, लोग पहले बहुत अच्छे थे आज बहुत खराब हो गए हैं, ये हमको जानकारी कैसे मिलती है। ये मानव विज्ञान की एक दूसरी धारा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि ये ऐसी धारा है जिस धारा में हम मनुष्य के साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और उनके पर्सनल अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जो व्यवहार रूप में, जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक स्वरूपों में और अपने पर्सनल इंटेंशंस के रूप में व्यक्तिगत जो हमारे अनुभव होते हैं, वो एक किस प्रकार से किसी समाज को प्रभावित करते हैं और ये प्रभाविता जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होती है, ये मुख्य रूप से इस शाखा के रूप में समझा जा सकता है। मनोविज्ञान की यह शाखा मुख्य रूप से मनुष्य के व्यक्तिगत स्तरों पर बात नहीं करती है, बल्कि यह सामूहिकता के स्तर पर किस प्रकार की चीजें मानव समुदाय में व्यवहारगत रूप से चल रही हैं और वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। इस चीज को थोड़ा पढ़ने के लिए साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच को हम स्थापित कर सकते हैं। और आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी बातें जब हम विशिष्टता पूर्वक रूप से करते हैं, तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी विशिष्ट धारा के रूप में अर्थात ब्रांच के रूप में आती है जो हमें पर्यावरण के साथ मानव के संबंधों की ओर ले जाती है। पर्यावरण और मानव, क्योंकि हम मानव, जैसा कि अभी प्रोफेसर वेंकट ने बताया कि मानव एक प्राणी जगत में एक स्थान भी रखता है। प्राणी जगत के स्थान के रूप में इकोलॉजिकल फैक्टर्स के रूप में मनुष्य और उसके संबंध किस प्रकार से काम करते हैं, वो इस धारा में हम प्रयोक्तृता के साथ समझते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन और पॉसिबिलिटीज यानी नियतिवाद के नियतार्थ में और आगे आने वाली संभावनाओं के आधार पे हम पर्यावरण के सदस्य कैसे पर्यावरण के साथ आपसी समन्वय बनाते हैं और आपसी संबोधन करके इसका निर्माण करते हैं। It's attempt to understand that the relevant influence of environment and human society, how can they manage it? इकोलॉजिकल कंसंट्रेट को एक विशेष तरीके से ये निर्धारित करता है। उसकी अन्य धाराओं के संबंध में अगर आप देखें तो एथनो आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मानव विज्ञान की उपधाराएं हैं जो एथनिकल रूप से ये कन्वर्ट करती हैं कि किस प्रकार से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को हम आर्कियोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके और जो भी नॉन एग्जिस्ट कल्चर अभी हमारे समय में हैं वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं उनको, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं या मिस्र के जीवंत उदाहरण आपके सामने हैं। इन उदाहरणों में ये आर्टिफैक्ट्स के रूप में, मटेरियल कल्चर के रूप में हमारे साथ उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी संस्कृतियों के बारे में विशिष्टताएं और भिन्नताएं हमको नहीं मालूम है। ये विशिष्टताएं और ये विभिन्नताएं हमको यह मानव विज्ञान की धारा प्रदान करती है, जिसमें मुख्य रूप से मटेरियल कल्चर को आधार बना करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो धर्म का मानव विज्ञान है वो हमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों यानी कि आत्मावाद, प्रकृतिवाद, मानववाद या फिर एक ईश्वरवाद जैसी विशिष्टताओं को समझाता है। हमने अक्सर टोटम और टैबू जैसे विशिष्ट शब्दों की बात सुनी होगी। ये टोटम और टैटू जैसे विशिष्ट शब्द भी हमें धार्मिक
मानव विज्ञान की शाखा के तहत आते हैं। जो हमारी रिचुअल्स और सेरेमनीज जो हमारे समाज का हिस्सा होती हैं, वो कैसे एक दूसरे की संस्कृति के साथ जुड़ी होती हैं, ये दिखाने का प्रयास किया जाता है इस धारा में। नई धाराओं के रूप में अगर हम मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान की बात करें तो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट जो संस्कृति के रूप को निर्धारित करती है, इसको हम अलग तरीके से अर्थों के और प्रतीकों के स्वरूप में समझ सकते हैं। यानी कि किसी संस्कृति को हम किस प्रकार से समझते हैं, देखते हैं और उनके स्वरूपों को समझते हैं, इसे हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी या इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि कला हमारी विशेषता, हमारे कल्चर की विशेषता के रूप में स्थापित रहा है, इसलिए इसको हम एस्थेटिक व्यू पॉइंट से न देखते हुए सिंबॉलिक व्यू पॉइंट से देखते हैं। इसके अतिरिक्त मानव विज्ञान की कई अन्य शाखाएं भी हैं, जिसमें विजुअल एंथ्रोपोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जेंडर एंथ्रोपोलॉजी और विभिन्न अन्य शाखाएं हैं जो मॉडर्न समय में भी इस्तेमाल में आ रही हैं। Thank you, Mr. Pankaj. Now I'll move to the next branch called archaeological anthropology. It studies the origin and development of human being prior to the invention of script. And the last one is linguistic anthropology. It studies the languages, particularly in neo-literate societies, and some tribal societies have a dialect, but they don't have a script. The linguistic anthropologists are studying those languages. So with this, we are summing up, and so far we have discussed the definition of anthropology and branches of anthropology and its sub-branches of anthropology within. Thank you so much.